Hi all, I believe you guys are going good. So let's see what we have for the day. So we have like junior grammar and composition book 4. So this is for class 4. So let's continue. Kindly turn your pages and go to page number 5. Kindly make sure you are on page number 5. So let's see. The first topic is like the sentence. Okay, and the first one is look at the following group of words. Like the first word line is life is a gift by God. Sachin Tendulkar is a great cricketer. Gandhiji brought us freedom. Go there and come. Here, as you can see, all those sentences are giving a complete meaning which you can understand that okay, life is a gift by God. इसका मतलब ये होता है कि हमारा जीवन जो है वो भगवान के द्वारा दिया गया एक वरदान है या गिफ्ट है. सचिन तेंदुलकर इज़ अ ग्रेट क्रिकेटर. सचिन तेंदुलकर एक बहुत बड़े क्रिकेटर हैं. गांधी जी ब्रॉट अस फ्रीडम. गांधी जी ने हमें स्वतंत्रता दिलाई है. गो देयर, वहाँ जाइए. कम, आप यहाँ आइए. सो व्हाट exactly we can understand from here is like if you can see the very first line, it is a group of words and the last is a single word. However, each and everything are making a complete sense. So here what exactly the subject is trying to say, that if a sentence gives you a complete meaning and you are understanding that okay, the other one is saying this particular thing which I need to do or which I can understand completely, then yes, that is called a sentence. Now let's see. In description it has given that the above group of words make complete sense. So this sentences, it is found that 1, 2 and 3 sentences are formed of more than one word each. As I have mentioned before, like 1, 2 and 3 are formed of more than one word each. Correct. Now sentence 4, it has 2 words. Now sentence 5 is of one word. Okay. So now let's see the formal definition of a sentence. One word or a group of words arranged in a systematic order having complete sense is called a sentence. हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी आपको मैं कुछ बोलूं और आपको पूरा समझ में आ रहा है कि चलो इसने ये बोला है और मुझे ये करना है, या मुझे समझ में आ रहा है कि सामने वाला ये मुझे बोलना चाहता है, उसको हम सेंटेंस में लेंगे. मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आई है. फिर से देखते हैं. डेफिनेशन ऑफ अ सेंटेंस प्रूव्स दैट सेंटेंस कैन बी फॉर्म्ड ऑफ वन वर्ड और मोर देन वन वर्ड. ओके, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि वन वर्ड में भी एक सेंटेंस आ रहा है, मोर देन वन वर्ड में भी एक सेंटेंस आ रहा है. करेक्ट. दे बियर कंप्लीट सेंस और मीनिंग. एज आई मेंशन बिफोर दैट आपको पूरा समझ में आ रहा है कि बंदा क्या बोलना चाहता है. करेक्ट. नाउ द वर्ड्स ऑफ सेंटेंस, the words of a sentence are properly arranged. Correct. So यहाँ पर what you can say is Sachin Tendulkar is a great cricketer. Now if we go ahead and tell this like Sachin Tendulkar great cricketer is a, this has no meaning. So what exactly it is trying to state is Sachin Tendulkar is a great cricketer. मतलब एक वर्ड के बाद जो आना चाहिए और जो एक कंप्लीट मीनिंग आपको एक सेंटेंस में दे रहा है, दैट इज कॉल्ड अ सेंटेंस. ओके. सो नाउ द एग्जाम्पल्स ऑफ वन वर्ड सेंटेंसेस. सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक वर्ड में भी आप एक सेंटेंस को बोल सकते हैं. जैसे कि पहला वाला दिया गया है कि गो, कम, स्टॉप, स्टैंड, लुक एंड स्टार्ट. गो मतलब जाइए, कम मतलब आप आइए, स्टॉप मतलब ठहर जाइए, स्टैंड मतलब आप खड़े हो जाइए, लुक देखिए, स्टार्ट शुरू कीजिए. सो इसमें से यहाँ पर आपको कुछ बताया जा रहा है कि आप इन सब चीज़ों को करें, या तो आपको समझ में आ रहा है कि चलो मुझे ये सारी चीज़ें करनी है. आई बिलीव यू गाइज गॉट इट. सो लेट्स गो टू पेज नंबर 6. व्हाट वी कैन सी हियर इज अगेन examples of two word sentences. So the very first one is go there, the next one is come here, third one is sit down, fourth one is stand up, fifth one is look up. Okay, so go there, वहाँ जाइए, come here, यहाँ आइए, sit down बैठ जाइए, stand up खड़े हो जाइए, look up
ऊपर देखिए, यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि लुक यहाँ पर बताया गया है कि आप देखिए, ये भी एक ही वर्ड का है, और यहाँ पर जो लुकअप दिया गया है, यहाँ पर जो फिफ्थ एग्जाम्पल में लुकअप दिया गया है, उसने बोला है कि आप ऊपर देखिए। करेक्ट। सो ये हालांकि एक और दो वर्ड की ही है, पर इसमें से आपको समझ में आ रहा है कि चलो मुझे कुछ करना है और मुझे कहीं पर देखना है। करेक्ट। सो इन सब को हम बोल सकते हैं कि एक वर्ड में भी सेंटेंस हो सकता है और दो वर्ड्स में भी सेंटेंस हो सकता है। सो ना एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टी वर्ड सेंटेंसेस, द फर्स्ट वन इज ग्रास इज ग्रीन, घास हरे होते हैं। मॉर्निंग वॉक इज़ गुड फॉर हेल्थ, सुबह चलना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मैन इज़ अ सोशल एनिमल, डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल एंड मॉर्निंग शोज द डे, डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। दैट मीन्स कुत्ता एक वफादार जीव है ना। फिर देखते हैं, ये तो रही सेंटेंस की बात। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई है। अगर मैं फिर से विस्तार में आपको बताऊँ तो एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ जो आपको समझ में आ रहा है। अगर मैं आपको बोल दूँ एक वर्ड लाइक वाटर बॉटल, आपको समझ में आ रहा है कि वाटर बॉटल क्या है, बट उसके साथ करना क्या है, दैट इज नॉट अ सेंटेंस। करेक्ट, दैट इज एन ऑब्जेक्ट। अब फिर देखते हैं फ्रेज में, देखते हैं एक सेंटेंस होता है, एक फ्रेज होता है। फिर फ्रेज में देखते हैं, लुक एट द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। The very first one is in the afternoon, second one is after an hour, third one is on the floor, fourth one is in front of, fifth one is my elder brother, etc. So पहला वाला का मीनिंग क्या है कि इन द आफ्टरनून मतलब दोपहर में। दोपहर में तो उसने टाइम तो बता दिया, पर उसमें करना क्या है हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमको पूरा मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है कि दोपहर में। ओके, दोपहर में कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट वन इज आफ्टर एन आवर, एक घंटे बाद। चलो ठीक है, एक घंटे बाद क्या होगा, हमें उसके बाद का जो है सीक्वेंस हमको पता नहीं है कि उसके बाद क्या होने वाला है या उससे पहले क्या होने वाला है। यहाँ पर दिया गया है ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे है, क्या है हमको पता नहीं है। इन फ्रंट ऑफ, सामने, किसके सामने, कहाँ सामने, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। करेक्ट। माई एल्डर ब्रदर एट्सेट्रा, मेरे बड़े भाई। अब मैं अगर कुछ बोलना चाहूँ, अब देखिए मैं आपको सेंटेंस और फ्रेज के बारे में समझाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, माई एल्डर ब्रदर। नाउ माई एल्डर ब्रदर इज अ पुलिस ऑफिसर, दैट मीन्स के मेरे बड़े भाई जो है वो एक पुलिस ऑफिसर हैं। और मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि माई एल्डर ब्रदर, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। करेक्ट। इसका मतलब हिंदी में आता है कि मेरे बड़े भैया। हालांकि मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रही है पूरी चीज़। देखिए, माई एल्डर ब्रदर इज़ अ पुलिस ऑफिसर, दैट मीन्स कि मेरे बड़े भैया एक पुलिस ऑफिसर हैं। माई एल्डर ब्रदर इज़ ओनली, कि हमको ये समझ में आ रहा है कि मेरे बड़े भैया। ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा गया है कि द अबव ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन ईच नंबर आर फ्रेजेस, इट इज़ फाउंड दैट ईच फ्रेज इज फॉर्म्ड ऑफ more than one word, each of them bears meaning but does not have complete meaning, as I mentioned before, as I mentioned earlier, कि हर फ्रेज में एक या दो वर्ड होता है, या दो से भी बहुत, दो या तीन यहाँ पर हम देख सकते हैं, वैसे भी वर्ड्स होते हैं। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक फ्रेज बना सकते हैं, हालांकि मीनिंग होते हैं बट कंप्लीट मीनिंग नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं फिर से वही एग्जांपल दूंगा, माई एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भैया। आपको समझ में आ रहा है कि मेरे बड़े भैया मतलब मेरे कोई बड़े भाई, पर उसका क्या, अब सेंटेंस वो कैसे बनेगा, माई एल्डर ब्रदर इज अ डॉक्टर, कि मेरे बड़े भैया एक डॉक्टर हैं। करेक्ट। नाउ अब let's go to the formal definition of phrase. So it means that a phrase is a group of words arranged in proper order having meaning but without having complete meaning. जैसे कि मैंने पहले बताया, कंप्लीट मीनिंग एक फ्रेज का नहीं होता है। आपको समझ में नहीं आएगा, आपको समझ में ये नहीं आएगा कि करना क्या है और वो क्या एग्जैक्टली बोलना चाहता है। आपको बस समझ में आएगा कि चलो ओके, मेरे बड़े भैया, जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया। फिर देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इसके हैं। यहाँ पर दिया गया है कि आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स इन द आफ्टरनून, बर्ड्स रिटर्न टू देयर नेस्ट एट सनसेट, my grandfather walks for an hour in the morning, 7 little children are playing in the park, there is a temple in the middle of the river,
इन द above examples the underlined parts are the phrases. तो यहाँ पर वो ये बोलना चाहता है, अगर हम एग्जाम्पल 1 को पूरा ले लें तो वो बोला गया है कि आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स इन द आफ्टरनून. सो यहाँ पर इन द आफ्टरनून ये जो है ये एक फ्रेज है, और अगर हम एक ये सारी चीज़ों को मिला दें कि आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स इन द आफ्टरनून, इसका मतलब ये है कि मैं अपने दोस्तों के साथ दोपहर में खेलता हूँ. ये एक सेंटेंस बन गया. और यहाँ पर अगर हम देखें इन द आफ्टरनून मतलब दोपहर में क्या होता है क्या नहीं होता है हमको कुछ पता नहीं होता, तो इसीलिए हम इसको फ्रेज बोलते हैं. बर्ड्स रिटर्न टू देयर नेस्ट एट द सनसेट. बर्ड्स अपने घोंसले में शाम को आ जाते हैं. और यहाँ पर ये बोला गया है जब सूरज डूबता है. सूरज डूबता है तो मुझे भी पता है कि सूरज डूबता है, पर उससे क्या होता है ये हमको समझ में नहीं आ रहा, सो इसीलिए वो फ्रेज है. फिर माई ग्रैंड फादर वॉक्स फॉर एन आवर इन द मॉर्निंग. माई ग्रैंड फादर वॉक्स इसका मतलब है कि मेरे ग्रैंडपा जो है वो चलते हैं फॉर एन आवर इन द मॉर्निंग. इसका मतलब है इसके साथ कुछ एक एक्शन जुड़ा हुआ है जो कि आपको समझ में आ रहा है कि चलो इस समय में या ये कुछ हो रहा है. तो आपको एक कंप्लीट सेंस हो रहा है. दिस इज अ सेंटेंस एंड दिस इज अ फ्रेज एज आई हैव इंडिकेटेड हियर. फॉर एन hour in the morning, correct. 7 little children are playing in the park. 7 little children, 7 बच्चे क्या कर रहे हैं हमको पता नहीं. उसके बाद हमने लगाया are playing. 7 little children are playing in the park. in the park आपको कोई सेंस नहीं बता रहा है, मतलब पार्क में क्या कर रहे हैं हमको कुछ भी पता नहीं है. 7 little children 7 बच्चे. सो इसलिए यहाँ पर ये दो पार्ट जो है आपको फ्रेज है. there is a temple in the middle of the river. इन द मिडिल ऑफ द रिवर, अगर आपको मैं बताऊं कि नदी के बीच में, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. आपको बस ये समझ में आएगा कि चलो नदी के बीच में. बंदा बोलना क्या चाहता है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है. यहाँ पर स्ट्रेट बोला गया है देयर इज ए टेम्पल. जब हम इसको इसके साथ जोड़ते हैं तब ये एक सेंटेंस बनता है जहाँ की हमको कंप्लीट मीनिंग समझ में आ रही है. इन द मिडिल ऑफ द रिवर इज लाइक अ फ्रेज कि नदी के बीच में कुछ भी हो सकता है. नदी के बीच में आप अपने मन से कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, करेक्ट. आपको कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा है. इन द अबव एग्जाम्पल्स द अंडरलाइन पार्ट्स आर द फ्रेजेस. थैंक यू सो मच.